So previously in the earlier classes we have discussed binomial theorem. For any number, it is positive or negative. So we have discussed some problems on x plus y whole power of n or x plus y whole power of minus n, and it has been reduced to in the form of 1 plus x power of n and 1 plus x power of minus n and so on. Now in the present class, आज की क्लास में इंशाल्लाह we will discuss नातिक अदद बाइनोमियल थ्योरम नातिक अदद के लिए, that is binomial theorem for rational index. Rational index means it is in the form of p by q, जो p by q की सूरत में है. क्या है? यहाँ पर लिखा रहा हूं मैं आपको. फर्स्ट फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? यूरोपी फैलाओ नातिक अदद के लिए. नातिक अदद मीन्स रैशनल नंबर. इट इज द फॉर्म ऑफ p by q, right? So if the first formula is, write down 1 plus x whole power of p by q. यहां देखिए दोनों भी टर्म्स क्या है? पॉजिटिव है, isn't it? 1 plus x मतलब यहां बीच में भी प्लस है और ऊपर भी प्लस है. जब दोनों टर्म्स प्लस रहेंगे तो अंदर के सारे टर्म्स आने वाले भी पॉजिटिव रहेंगे. इसके बरखिलाफ अगर एक टर्म ऊपर पॉजिटिव है या बीच में नेगेटिव है या बीच में नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, तो ऐसी सूरत हाल में टर्म्स क्या होंगे? अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, राइट? तो राइट डाउन द फर्स्ट फॉर्मूला 1 plus x power of p by q is equal to 1 plus p by factorial 1 into x by q, right? Plus p into p minus q, p into p minus q by factorial 2 into x by q whole square, plus p into p minus q into p minus 2q by factorial 3 into x by q whole cube, plus dash 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 so on, plus p into p minus q into p minus 2q into p minus 3q dash 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 p plus r minus 1 into q, p minus r minus 1 into q by factorial r into x by q to the power of r, right? So this is the rth term, right? So if we have a expansion in this form 1 plus x whole power of p by q, here both the terms are positive, therefore all the terms will be positive. This is positive, this is positive, this is positive, this is positive. Okay, is it clear? This is the first expansion. Now if I write this expansion for negative number minus p by q, see what happened. So it is second formula 1 minus x power of p by q is equal to t 1 minus p by factorial 1 into x by q plus p into p minus q by factorial 2 into x by q whole square plus minus p minus q p minus 2q by factorial 3 into x by q whole cube plus dash 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 so on minus 1 to the power of r 1 to the power of r dash 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 minus dash 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 minus 1 to the power of r into p into p minus q p minus 2q
p minus 3q, so on, p minus r minus 1 into q by factorial r into x by q whole power of r. Is it clear? So these are the two important formulae. First you write down this. Based on this, I will give more two formulae. On the basis of that, we will do the question. Okay, write down this formula first. Over. Now come to the next formula, that is third one. There is a slight change in this formula. इसमें थोड़ी सी तब्दीली है, ठीक है? तो 1 plus x power of minus p by q, ये लिखिएगा. I want to keep this formula here only because we will use as a in the question, in the numeric question we will use. Okay, so इसको मैं थोड़ा यहाँ रब कर लेता हूँ. और लिखिए यहाँ पे, I will erase this and I will write the next formula plus x whole power of minus p by q. This is third one. 1 plus x whole power of minus p by q is equal to, now this यहाँ क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आपको मैं बताया था कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव so terms will be alternate positive negative, right? So it is 1 minus p by factorial 1 into x by q. Then next term is, यहाँ क्या था, p minus q था नहीं, ये क्या होता, p plus q by factorial 2. Then next is plus this again minus p plus q into p plus 2q by factorial 3 into x by q whole cube plus dash 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 on, right? Then the last term will be, p into p plus q into p plus 2q, p into p plus q into p plus 2q into p plus 3q dash 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 p plus r minus 1 into q by factorial r into x by q to the power of r. ठीक है? Is it clear? तो देखिए क्या डिफरेंस है, देखिए पहले वाले में और दूसरे वाले में, थर्ड वाले में. पहले वाले में टर्म्स क्या थे मालूम, दोनों पॉजिटिव थे, सो ऑल टर्म्स विल बी पॉजिटिव. हियर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सो टर्म्स विल बी इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इज इट क्लियर? राइट डाउन दिस थर्ड वन. देन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज प्लस एक्स पावर ऑफ माइनस q इज 1 minus p by factorial 1 p plus q by factorial 2 x by q whole square p minus p into p plus q into p plus 3q by factorial r into x by q whole square into minus 1 to the power of r. यहाँ पर क्या है, minus 1 to the power of r आना है, ठीक है? क्योंकि ये alternate positive है, यहाँ पे भी देखो alternate positive तो minus 1 to the power of r लिखे थे, तो into minus 1 to the power of r, right? Is it clear? Next, यहाँ dash dash plus है ना, यहाँ पे फिर और एक चार्ज तो आप लिख सकते प्लस. Then the next one is both are negative, so 1 minus 6 whole power of minus p by q दोनों नेगेटिव है, तो क्या होते हैं, सारे टर्म्स क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं. सो 1 plus p by factorial 1 p plus q by factorial 2 x by q whole square plus p plus q p plus 2q by factorial 3 x by q whole cube dash dash dash. यहाँ पर क्या आएगा, ये minus 1 to the power of r लिखे थे क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, बट हियर ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, therefore this minus 1 will not come and this will be only p minus q into p minus p plus q into p plus p, all is positive, p plus q, p plus 2q, p plus 3q, p plus r minus 1 into q by factorial r into x by q whole power of r. आ गया समझ में? So these are the very important formulae. Based on this, we have a number of questions. This is the fourth formula. Okay. Now write down a numerical question. The question on this formula comes for
7 marks. Now I will take the numerical question based on this formula. Now write down a question. सवाल लिखिए. ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा है. लामत ने इस सिलसिले का दिए हुए पहला सवाल लिखो. 7 मार्क्स क्वेश्चन. 7 मार्क्स. 7 मार्क्स. पहला सवाल है तवील जवाब. तवील 7 मार्क्स. तवील जवाबी सवाल. 7 मार्क्स. ठीक है. दिए हुए ला मतनाही सिलसिला. ला मतनाही सिलसिला मीन्स इनफाइनाइट सीरीज. राइट. दिए हुए ला मतनाही सिलसिला. सवाल क्या है? 1 प्लस 1/3 प्लस 1 into 3 by 3 into 6 plus 1 3 5 by 3 into 6 into 9 plus dash 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 so on up to infinity. तो साथ से इसको क्या बोल रहे हैं? लाभंदय सिलसिला बोल रहे हैं. दिए हुए लाभंदय सिलसिले का मजमुआ मालूम करो. ठीक है. चलो अब जरा सवाल को अच्छी तरह देखिए. आप देखने से यह पता लगा कि इसके सारे टर्म्स क्या हैं? पॉजिटिव. ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पूरे टर्म्स पॉजिटिव. जैसे देखिए आप सवाल के पूरे टर्म्स पॉजिटिव है, आपके दिमाग में आ जाना कि ये अगर ये किसी दो केसेस में कन्वर्ट होगा. क्या केसेस कन्वर्ट होगा? एक 1 + x पावर ऑफ p/q में कन्वर्ट होगा या दूसरा 1 - x पावर ऑफ -p/q में कन्वर्ट होगा. राइट. किसी दो में ये कन्वर्ट होने के चांसेस है. सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू यूज द करेक्ट फॉर्मूला. राइट. चलिए अब अगर मैं दिए हुए सवाल को मेयरी ज़ाब्ते से तहव्वुल करा तो क्या होगा? देखो 1 की प्लेस पे 1 है. ये क्या है? p/फैक्टोरियल 1. यहां पर p/फैक्टोरियल 1 आना और x/q का टर्म आना. ठीक है. लेकिन आपको वहां पे क्या दिख रहा? खाली 1/3 दिख रहा. यहां पर मेरे पास क्या है? एक p/फैक्टोरियल 1 आना. फैक्टोरियल 1 में तो 1 कैसा भी नीचे लगा ले सकते, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता. और दूसरा आना है x/q आना है. x/q नजर नहीं आ रहा वहां पर, तो आपको नजर आए वैसा लिखना है. और तीसरा टर्म क्या है? देखिए p आना, p+q/फैक्टोरियल 2 आना इंटू x/q होल स्क्वायर आना. तो ये 1 × 3/3 × 6 को ऐसा एडजस्ट करना जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. इस फॉर्म में p × p+q/फैक्टोरियल 2 इंटू x/q होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. सो दिस एडजस्टमेंट यू हैव टू डू. राइट. चलो हल सॉल्यूशन. दिए हुए फर्ज करो दिए हुए सवाल को इस तरह लिखने पर क्या करो? मैं सवाल को ऐसा लिख रहा हूं. देखो कैसे लिख रहा हूं. s = इसका नाम ऐसे रखा मैं.
सम बोला उन्होंने, दिए हुए सिलसिले का मजमुआ, मजमुआ बोले तो सम होता, तो सम को मैं एस से जाहिर कर रहा हूँ, राइट। एस इज इक्वल टू 1 की प्लेस में 1 लिख रहा हूँ, प्लस ये 1/3 था, 1/3 को क्या कर सकता हूँ मैं, 1 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1/3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि 1 से 1 को मल्टीप्लाई, 1 से किसी नंबर को भी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 इंटू 1/3। और ये 1 की है, ये p के नीचे क्या था, p1 गया 1 हो गया, नीचे फैक्टोरियल 1 नहीं है, तो मैं इसको चाहे तो 1/1 भी लिख दे सकता हूँ, राइट। प्लस अब ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से मेरे को क्या निकालना है, ये इसको मैं क्या बता, x/q बताया 1/3 को, तो इसमें से भी क्या करूंगा मैं, 1 इंटू 3 इंटू 6 में से क्या करूंगा, एक x/q बाहर निकालूंगा, यानी x/q किसकी मुमासिल है, 1/3 की मुमासिल है। सो इसमें से क्या करूंगा मैं, 1/3 बाहर निकालूंगा, निकाल के 1/3 होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग, यहाँ क्या करूँ देखो, मालूम है, इसको लिख रहा हूं मैं 1 p होना है, मेरे को p होना है, p1 आ गया इंटू 3, राइट, बाई इसमें से एक 3 निकाला, इसमें से एक 3 निकाला, तो 3 इंटू 3 इज 3 स्क्वायर हो गया। सो दिस इन डिनोमिनेटर, सो 1/3 इंटू 1/3 इज 1/3 होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया देखो, 1/3 होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। सो व्हाट इज रिमेन हियर, यहाँ से क्या बचा था, इसमें से एक 3 निकाले थे आप, इसमें से एक 3 निकाले थे, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 6 के 2 टुकड़े बनाए थे, 3 इंटू 2, 3 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा था, 2 बचा। सो इट मीन्स दैट ये क्या बन गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 इंटू 2, तो इन्हें क्या बन गया, 1 इंटू 2, ठीक है। अगेन रीमल्टीप्लाई करके देखो करेक्ट है या रॉन्ग, यू हैव टू डू दिस वेरिफिकेशन। ये हो गया 1/3, ये 1/3 स्क्वायर क्या हो गया 9, राइट, 9 टू द 18, 18 वाला 18, 6 क्या हो गया 18 आ गया। सो यू गॉट द ओरिजिनल टर्म, आ गया समझ में। देन प्लस सिमिलरली इसको भी क्या कर रहा हूँ मैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 भाई, इसमें से क्या कर रहा हूँ, एक 3 निकाल रहा हूँ, इसमें से एक 3 निकाल रहा हूँ, इसमें से एक 3 निकाल रहा हूँ, तो इसमें का एक 3, इसमें का एक 3, इसमें का एक 3, सो कितने 3 हो गए, 1/3 होल क्यूब प्लस डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्हें 3 टर्म ही दिया था, सो से वी आल्सो राइट ओनली 3 टर्म्स। आ गया समझ में, क्या कर रहा हूं, सिर्फ ये एडजस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है, अगर एडजस्टमेंट कर लिए तो देन यू मे गेट द आंसर। सो 1 को क्या करा, 1 लिखा, प्लस 1/3 को क्या करा, 1/1 इंटू 1/3, देन इसको क्या करा, 1 इंटू 3/3 इंटू 6 था, तो ऊपर 1 इंटू 3 जैसे वैसा लिख लिया, लेके क्या करा, नीचे से एक 3 निकाला, फिर बाजू से एक 3 निकाला, तो 2 3 हो गए, सो 1/3 इंटू 3 1/3 स्क्वायर, अंदर क्या बच रहा था, एक 1 बचा, दूसरे में क्या बचा था 2 बचा, सो ये हो गया 1 इंटू 2। देन इन द थर्ड टर्म व्हाट आई हैव डन, पहले में से 135 ऊपर का जैसे कैसा लिख लिया, और नीचे क्या था 3 इंटू 6 इंटू 9 था, तो पहले में से एक 3 निकाला है, दूसरे में से एक 3 निकाले, तीसरे में से एक 3 निकाले, सो ऑल दिस इन डिनोमिनेटर, सो ऑल टुगेदर इट बिकम 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इज 1/3 होल क्यूब। और जब ये सब निकाल लिए तो अंदर पहले 1 बचा था, बाद में 2 बचा था, बाद में 3 बचा, तो ये हो गया 1 2 3 डैश 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 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देन विच कैन बी रिटन एज, फिर मैं इसको चाहे तो ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1/1 1/3 होल क्यूब, सॉरी 1/3 ओनली, प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं आप, फैक्टोरियल 2 इंटू 1/3 होल स्क्वायर, प्लस 135 बाई इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 इंटू 1/3 होल क्यूब प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, राइट। चलो अब रास्ते से कंपेयर करो, 1 की प्लेस पे 1 आ गया, 1 p बाई फैक्टोरियल की प्लेस पे 1/फैक्टोरियल 1 आ गया, x/q की प्लेस पे 1/3 आ गया, 1 इंटू 3 की प्लेस पे p इंटू p प्लस q बाई फैक्टोरियल 2 आ गया, इंटू 1/3 की प्लेस पे x/q होल स्क्वायर आ गया। सो
ये क्या हो गया, टोटली आपके ज़ाब्ते के हिसाब से ना पूरा सेट हो गया, राइट। तो which is equivalent to this formula, ठीक है। now space is here, so दिए ये आपका मियारी ज़ाब्ता था, मियारी ज़ाब्ते से तकाबुल करने पर, ये ज़ाब्ता मैं यहाँ लिखे छोड़ा था आपको ताकि इट इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। मियारी ज़ाब्ते से तकाबुल करो, जरा देखो घूर के देखो क्या होगा, यहाँ तकाबुल करने पर यहाँ क्या हो रहा, 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, राइट। 1 की प्लेस में क्या आ गया, p आ गया, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1, राइट। चलो x बाई क्यू, व्हाट इज x बाई क्यू, 1/3, देयरफॉर x बाई क्यू इज इक्वल टू 1/3, राइट, राइट। देन p की प्लेस से p आ गया, p प्लस q की प्लेस में क्या आ रहा, 3 आ रहा, नीचे फैक्टोरियल 2 था, यहाँ भी फैक्टोरियल 2 आ गया। सो अब p प्लस q इज इक्वल टू 2, p plus q is equal to 3. What is p? 1. So 1 plus q is equal to 3. It means that q is equal to 2. तो q की कदर क्या आ गई, 2 आ गई, right? Therefore, what is x by q? And this implies that x p equal to 1 आया था, right? x by q means x equal to क्या था, q by 3. What is q? 2/3. So it means that the value of x is equal to 2/3. So actually these are the very important components. These are the very important components. If you find the value of this, means your answer is over. ठीक है, ये असल अहम चीज़ें हैं। अगर आप p की कदर निकाल लिए, q की कदर निकाल लिए, इसकी कदर निकाल लिए, तो 99% आंसर इज आ गया आपको। नो, अब क्या करेंगे आप, सो एज वी हैव कंपेयर द गिवन क्वेश्चन the standard formula, right hand side पूरा 100% सेम था, so it means that left hand side is equal to the my answer, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा मैं, मियारी ज़ाब्ते से तकाबुल करने पर ये सब कदरें आ गई, p की कदर आ गई, x by q कदर आई थी, इससे q की कदर आई थी, q की कदर से x by q की कदर आ गई, राइट। therefore what is my remaining work, just I have to substitute the values in this left hand side part, okay। so I am doing the same thing, ठीक है। यहां तक लिख लिया, आई वांट टू रिमूव द फर्स्ट पार्ट, ऊपर का सवाल मैं इरेज कर दे रहा हूं, राइट। नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग वन, क्या बोलिए, मियारी ज़ाब्ते से तकाबुल करने पर लिखिए, देयरफॉर 1 माइनस x होल पावर ऑफ माइनस p बाई q इज इक्वल टू, राइट, 1 माइनस x, व्हाट इज x, 2/3, 2/3 whole power of p by q, whole power of p by q. What is p? 1. What is q? 2. So this is nothing but minus 1/2, or which is equal to, if I want to simplify this, 3 1s are 3, 3 minus 2 1, that is 1/3. Is it clear? 3 1s are 3, 3 minus 2 is 1, 1/3. So 1/3 to power of minus 1/2, right? अगर मैं इसको ऊपर बुला लिया, 1/3 को ऊपर बुला लिया, तो क्या होता, इट बिकम 3 पावर ऑफ -1 होल पावर ऑफ -1/2। अब आप एक ज़ाब्ता पढ़ के आए थे 7th 8th 9th पे, a पावर ऑफ m होल पावर ऑफ n इज इक्वल टू a पावर ऑफ n, इंडिसेस में पढ़े थे, राइट। सो इफ आई वांट टू यूज दिस फॉर्मूला, -1 into -1/2, क्या होता, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इज 3 power of 1/2, or if you write, you can write this as 1/2 is equal to square root of 3. तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, मतलूबा, ये आपका क्या हो गया, मतलूबा जवाब होगा। यानी जो लामतनाई सिलसिला दिया था उन्हें, 1 + 1/3 + 1 into 3/2, जो भी सवाल था उसका आंसर क्या आया, √3 आ गया। आगे समझ में। सो इफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह यू मे अंडरस्टैंड द ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन, बिकॉज दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, बिकॉज इसके अंदर पूरे चीज़ें दे दिया था आपको,
ठीक है, क्या क्या दे दिया था, 1 दे दिया था, p by q दे दिया था। अब आने वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़ा सा एडवांस रहेंगे, उसके अंदर क्या करेगा, उन्हें ये 1 नहीं देगा, या ये फर्स्ट टर्म रहता ना 1 प्लस p by 1 इंटू एक्स बाई क्यू टर्म रहता, ये नहीं देता। तो नहीं दिया तो क्या करना पड़ता है आपको, जैसो जरा दिमाग पे बार डालना, डाल की जो सेकंड टर्म थर्ड टर्म रहते उसकी मदद से फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना, उसके बाद दोनों तरफ ऐड करना, फिर फर्स्ट टर्म को ऐड करना, 1 को ऐड करना, ऐड करके कंपेयर करके देखना। जब तक आप अच्छी तरह सेटिस्फाई नहीं हुए, जब तक ये फार्मूलों से आप इक्विवेलेंट कंपेयर नहीं करे, जब तक पूरे टर्म्स नहीं आए, उस हद तक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट नहीं करना। ओके, सो दिस इज अ वे टू सॉल्व द लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस आप और एक सवाल लिख लीजिए, इंशाल्लाह यू गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर रेसिडेंस, यू मे गेट द आंसर। राइट, होना है, सवाल दे दो, 30 मिनट्स हो जाते ना। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सवाल है, दिए हुए लामतनाही सिलसिले का, दिए हुए लामतनाही सिलसिले का मजमुआ मालूम कीजिए। सवाल लिखूं, सवाल लिखिए, 3/4 प्लस 3 इंटू 5 by 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 by 4 इंटू 8 इंटू 12 प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। राइट, 3 इंटू 5 इंटू 7 by 4 इंटू 8 इंटू 12। चलो अब जरा इसको जरा घूर के देखिए, क्या होगा इसके अंदर, कहां से शुरू हो रहा हूं, यहां से शुरू हो रहा, तो इसका मतलब इसमें कौन सा टर्म नहीं है, फॉर्मूले से कंपेयर करा तो ये चाहे तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड टर्म से शुरू कर सकते हैं, p बाई फैक्टोरियल इंटू एक्स बाई क्यू बना सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे 1 जो था यहाँ पे 1 नहीं है, तो इट मीन्स दैट यू हैव टू ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। राइट, so based on the previous question, you go and try this one question. If you are not in a position to get the answer, inshallah tomorrow in the next class I will show you how to solve this. Okay, by that time go and practice the questions perfectly. Thank you. Once again we will meet in the next class, inshallah. Right, Khuda Hafiz.